الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اپنی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، وہ نبی جو اپنی امت کے لیے ہمیشہ یہ کوشاں رہے کہ کیسے اپنی امت کو بھلائیوں میں لایا جائے، کیسے ان کو برائیوں سے روکا جائے، کیسے ان کو صحیح راستے پر لایا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے چاہت تھی. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے عطا کی، اور انہی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی نعمت جو ہے اولاد بھی ہے. اولاد اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین چاہے اولاد دے دے اور جس کو چاہے اللہ رب العالمین اولاد نہ دے. یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ رب العالمین کے اختیارات پر ہے. اللہ رب العالمین سورہ شورى کے اندر ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، تمام کی تمام بادشاہت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء الذکور،
اللہ رب العالمین جسے چاہے اللہ رب العالمین لڑکا عطا فرما دے اور جس کو چاہے اللہ رب العالمین بیٹی عطا فرما دے. اور ازوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ رب العالمین چاہے کسی انسان کو بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرما دے. اور آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ رب العالمین جسے چاہے بانجھ بنا دے، یعنی کہ اس سے اولاد سے محروم کر دے. یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے. انسان یہ چاہے کہ اس کے بیٹا ہی بیٹا ہو، اللہ رب العالمین اس کے لیے بیٹی عطا فرما دیتا ہے. اور انسان یہ چاہے کہ میرے لیے بیٹی ہو، اللہ رب العالمین اس کو بیٹا عطا فرما دیتا ہے. اور کسی کو اللہ رب العالمین دونوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے. ہم کے فیصلے پر راضی ہونا ہے. اللہ رب العالمین جو فیصلہ کر دے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے، جو بچے شور کر رہے ہیں وہ چپ خاموش بیٹھے رہے. آپ لوگ میرے مائی بہنیں تھوڑے خاموشی کے ساتھ سنیں. آپ آئیں اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہیں، جو آپ بیٹھ کے نہیں باتوں میں نہ لگے، تھوڑا وقت دھیان سے سنیں. یعنی کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے اولاد عطا فرما دے. لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے، یہ پروگرام رات بھر تو چلے گا نہیں بھائی. یہ جو بچے شرارت کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں ان کو سمجھائیں. مشکل سے 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. شانتی کے ساتھ میں سنیں یا اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. جہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے رحمت وہاں نازل ہوتی ہے، فرشتے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہاں شانتی کے ساتھ میں یہ باتیں سنیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں باتیں چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے اولاد عطا فرما دے. لیکن معاشرے کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب گھر کے اندر لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس وقت جو گھر کے اندر خوشی کا جو ماحول ہوتا ہے، جو مسرت کا ماحول ہوتا ہے، جو خالائیں، بوائیں، پھوپھی، نانی، دادی، تمام لوگوں کی جو مبارکباد ہوتی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں کا تو یہ رواج ہے کہ گھر کی سب سے اونچی چھت پر چڑھ کر تھالیوں کو بجایا جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر لڑکا پیدا ہوا ہے. یعنی کہ لڑکے کی خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک انسان روک نہیں پاتا. اور وہیں پر اگر لڑکی پیدا ہو جائے، شامل کرام میں یہ بات کو واضح کر دوں تو میرا موضوع جو ہے بیٹیوں کی عظمت، یعنی کہ بیٹی کیا مقام ہے بیٹی کا، یہ میں موضوع کو لے کر آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا. یعنی کہ اگر گھر کے اندر بیٹی ہو جائے تو کیسی مایوسی چھاتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. نہ تو خالائیں فون کر سکتی، نہ ہی بوائی فون کر سکتی، اور نہ ہی ماما ہی فون کر سکتے کہ اگر یہ خبر سن لے کہ بھائی اس کے گھر پہ بیٹی ہوئی ہے. اور جب وہ کسی کو بات کہتا ہے نہیں میرے گھر پہ بیٹی ہوئی ہے، تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ یعنی کہ لڑکے کے لیے مبارکباد جو دیتے ہیں وہ الفاظ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. اور جب لڑکی کے لیے جب بولا جاتا ہے تو کیا دیتے ہیں؟ بولتے ہیں اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، اللہ کا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یعنی کہ ایسے جواب دیتے ہیں کہ جیسے کسی گھر کے اندر بڑا حادثہ ہو گیا. جب بڑا گھر کے اندر کوئی حادثہ ہوتا ہے نا، اس وقت جو تسلی دیتے ہیں لڑکی کی پیدائش پر اس طرح کے جوابات دیتے ہیں. میری ماں بہنوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیوں کو بہت زیادہ کمتر سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ لڑکے جو ہیں ہماری قوت ہیں، لڑکے ہماری طاقت ہیں. لڑکے جو ہے ہمارے کاروبار کو سنبھالے گا، ہماری فیکٹریوں کو چلائے گا، ہمارے دیگر دکانوں کو چلائے گا، یا ہمارے کام کاج کرے گا، ہماری نسلوں کو بڑھائے گا. یعنی کہ یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ کسی بات سے مخفی نہیں. میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں کہ لڑکے یقیناً ہماری بڑھاپے کا سہارا ہے،
हमारे लिए वो सहारा बनेगा, हमारी आगे नस्लों को बढ़ाएगा। लेकिन बेटी भी कम नहीं होती है मेरी माँ बहनों, कि जो बेटी के दिल के अंदर जो माँ बाप के लिए मोहब्बत होती है, जो बेटी के दिल के अंदर माँ बाप के लिए चाहत होती है, जो बेटी के दिल के अंदर माँ बाप के लिए खुलूस देखने को मिलता है, वो बेटों के अंदर नहीं मिलता। आपने देखा होगा, आपने अंदाजा लगाया होगा कि आपका एक बेटा हो और दूसरी तरफ 2-3 बेटियां हो, अगर उस बेटे से 2-3 मर्तबा पानी के लिए कह दिया जाए तो चौथी मर्तबा या तीसरी मर्तबा वो आपसे ये कह देगा जाओ खुद उठ कर ले लो। लेकिन बेटी वो चीज है, अगर उसको 10 मर्तबा आप खड़ी करेंगे ना, इंशाअल्लाह वो आपकी हर बात पर लब्बैक कहने के लिए तैयार रहेगी। बच्चे वो अपने कितने ही काम में मशगूल हो, कितने ही खाने में मशगूल हो, कितने भी काम में बिजी हो, वो आपके हर बात पर लब्बैक कहने के लिए तैयार रहेगी। यानी कि बेटी वो चीज है। लेकिन आज हमने बेटी को इतना कमतर समझ लिया। बाज दफा यहीं पर यह चीज देखने को मिली कि जब सासू ने जब ये बात सुनी कि बहू पर बेटी हुई है, तो वो हॉस्पिटल तक भी नहीं जा सकी। उसके चेहरे जो हैं काले पड़ जाते हैं, उनके चेहरों पर सिकने पड़ने लग जाती हैं। बताइए तो सही, ये कहां का मजहब है? बताइए तो सही, हमारी कैसी सोच है? वो बेटी जो हमारे लिए जन्नत के दरवाजा बन जाए, वो बेटी जो हमें जहन्नम से आड़ बन जाए, वो बेटी जो हमें जन्नत के ऊंचे मकाम में दिला दे, आज उसके ताल्लुक से हमारी ये सोच हो जाए तो फिर बताइए और क्या है? मेरी माँ बहनों, ये सोच जो है आज से नहीं, ये उस वक्त से है जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बईसत हुई। यानी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया, उससे पहले से ये चीज चली आ रही थी। यानी कि मक्का के अंदर यह रिवाज था कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, अपनी बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे नहल के अंदर जिक्र किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वइज़ा बुश्रा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकों का हाल का जिक्र किया और फरमाया कि जब उन लोगों को लड़की की बशारत दी जाती, जब उनको ये मालूम होता कि घर के अंदर लड़की की पैदाइश हुई है, लड़की पैदा हुई है, तो वो अपने चेहरे को छिपा लेते। उनके चेहरे जो है काले पड़ जाते, उनके चेहरे जो है स्याह पड़ जाते। और फरमाया वह हुआ कज़ीम, और वो अपने दिली के अंदर कुढ़ने लग जाते, अपने दिल के अंदर वो घुटन महसूस करने लग जाते। और यकीनन आज हमारा हाल भी इसी तरह है। अगर किसी घर के अंदर लड़का ना हो, 3-4 बेटियां हो जाएं, फिर तो सासू मां भी ताना देने लग जाती है, तुझे तो लड़की ही लड़की हो रही है, तुझे तो लड़का हो नहीं रहा, तेरे लिए जगह भी नहीं है। बास दफा ऐसा देखने को मिलता है। मेरी माँ बहनों, ये वो मकाम है लड़कियों का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम आने के बाद दिया। लोगों ने उनका मकाम को समझा और आगे फरमाया, यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, कि लोग समझते कि इसको मैं शर्म महसूस कर उठाता रहूं या इसको मैं मिट्टी के अंदर दफना दूं। और फरमाया इल्ला सा मा यहकुमून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क्या ही बुरा ये लोग फैसला करते हैं। यानी कि बेटियों के सिलसिले में इतने ज्यादा ये लोग इस तरह के मामला सोचते हैं। और आज यकीनन हमारा मामला भी यही है। जब बेटी की बशारत सुनाई देती है, जब बेटी की बशारत हमारे कानों में पड़ती है, तो हमारे चेहरे जो है काले पड़ जाते हैं, हमारे दिलों के अंदर घुटन महसूस होने लग जाती है। क्या करें, अभी 2-3 लड़कियां हो चुकी हैं, क्या किया जाए। इसका एक माना यह भी है कि आज हमने शादियों को इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया कि जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आज हमारे यहां शादियों का इतना बड़ा मुश्किल मामला है। क्योंकि इसीलिए लोग लड़कियों को बोझ तसव्वुर करते हैं। मेरी माँ बहनों, ये वो जमाना था जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर मबूस हुए, जब अल्लाह के नबी को नबी बनाकर भेजा गया, ये उस वक्त का मामला था। लेकिन अगर आज का तस्वीर किया जाए, लेकिन जहन अभी बदले नहीं है। गर्चे
रस्म और रिवाज बदल चुका है। बस फर्क सिर्फ इतना है, पहले लड़कियों को जमीन के अंदर दफना दिया जाता था और आज सिर्फ पेट के अंदर मार दिया जाता है। आज ये मामला है और इसी वजह से बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये कानून है कि डॉक्टर जो है ये नहीं बता सकता कि आपके पेट के अंदर लड़का है या लड़की है। अगर वो ये बता दे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाए। क्यों? क्योंकि आज का मामला ये है, अगर ये मालूम हो जाए कि लड़की है इसके पेट के अंदर, तो उसको पेट के अंदर गिरा दिया जाता है। ये जुल्म है, ये ज्यादती है और हमारे दरमियान ये चीजें मौजूद हैं। याद रखो, जो लोग इस तरह के मामला करते हैं, जिनके चेहरों पर सिलोटे पड़ जाती है, जिनके चेहरों पर सिकने तारी हो जाती है, यानी कि लड़की के बस खुशखबरी सुनकर उनके चेहरे काले पड़ जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन ऐसी लड़कियों से पूछेगा। फरमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत का नक्शा खींचा इसके अंदर और कहा कि उस दिन जिन लोगों ने अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया होगा, उस दिन पूछा जाएगा उनको उठाकर कि बताइए तुम्हारा गुनाह क्या था, तुम्हारी वजह क्या थी जिसकी वजह से तुम्हें जमीन के अंदर दफना दिया गया। और यकीनन वो कल कयामत के दिन गवाही देंगी। वो कहेंगी हमारा कोई गुनाह नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, गलती है तो हमारे वालिदैन की गलती है कि जिन्होंने हमें दुनिया में आने से पहले इस दुनिया से रुखसत कर दिया, जिन्होंने हमें दुनिया में आने के बाद इस मिट्टी के अंदर नीचे दफना दिया। ये मामला होगा मेरे माँ बहनों कि ये मामला था। सामने किराम, ये मामला है बेटियों के सिलसिले में। जरा गौर कर लो कि इस्लाम ने बेटियों को क्या मकाम दिया है, जरा वो गौर करो। वो लोग जो लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो लोग जो बेटियों के बसर खुशखबरी सुनकर उनके चेहरे काले पड़ जाया करते थे, जब उन्हें बेटी का मकाम पता चला, जब बेटी की जब बशारतें सुनी उन्होंने, जब उन्हें मकाम और मर्तबा पता चला, तो उन्होंने बेटियों के सिलसिले में दूसरों की बेटियों को लेकर उनको पालने लगे, दूसरों की बेटियों के लिए झगड़ने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटियों के सिलसिले में बशारत दी। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हदीस से बयान करते हैं, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मन कान लहू सलासन बनातिन फसबरा अलैहिन्ना। अगर किसी इंसान के 3 बेटियां हों और वो उन बेटियों पर सब्र करे, उनकी अच्छी देख रेख करे, उनको अच्छा पढ़ाए लिखाए और उनकी बेहतरीन जगह शादी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार, कि वो लड़कियां उनके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। ए मेरी माओ बहनों, ए मेरे नौजवानों, जरा गौर करो, जब हमें जहन्नम में कोई नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा, जब हम जहन्नम में जा रहे होंगे, हमारे कोई भी हमें बचाने वाले नहीं होगा, हमारे रिश्तेदार बचाने वाले नहीं होंगे, हमारे बेटे हमें बचाने वाले नहीं होंगे, हमारी माल और दौलत हमें बचाने वाली नहीं होगी, उस वक्त वही बेटी जिसकी वजह से आज हमारे चेहरों पर सिलौटें बन जाती हैं, वही बेटी की वजह से जिसकी वजह से हमारे चेहरे काले पड़ जाते हैं, वही बेटी हमारे लिए जहन्नम का पर्दा बन जाएगी। वो हमें जहन्नम में जाने से रोक लेगी मेरी माओ बहनों। और बाज़ रिवायतों में यह मिलता है कि अगर किसी इंसान के 2 बेटियां हो, वो भी इस चीज के अंदर शामिल होगा, लेकिन शर्त यह है उसकी अच्छी तरह से रेख देखो, उसको अच्छा तरीके से पढ़ाए लिखाए, उसकी बेहतरीन तरीके से शादी करे, उसके हुकूक अदा करे, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और बाज़ रिवायतों में यहां तक मिलता है, अगर किसी इंसान के सिर्फ 1 ही बेटी हो और वो उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाए, उसकी हुकूक को अदा करे, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। सामने किराम, ये था बेटियों का मकाम और मर्तबा जो हमें जहन्नम से बचा लेंगी। इस्लाम आया, लोगों की ऐसी सोचें बदली, जो लोग अपने मरहूम, जो अपने जालिमाना हाथों से लड़कियों को कत्ल कर दिया करते थे, अपनी बेटियों को दफना दिया करते थे, जब इस्लाम आया उनको मालूम चला कि बेटी का मकाम वो मकाम है, बेटी का मर्तबा वो मर्तबा है,
जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो लोग दूसरों की बेटियों के लिए झगड़ने लगे। एक वाक़या जिक्र करता हूं मैं बेटियों के सिलसिले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करके भी मदीना की तरफ जा रहे थे मक्का से, और आपके चचा की बेटी हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी जो उस वक्त मक्का के अंदर थी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वो बेटी हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की काफिले के पीछे पीछे चलने लगी। जब काफिले के पीछे चलने लगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ ले लिया, और जब कुछ सहाबा किराम को पता चला कि एक हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रही है, तो वो लोग आपस में झगड़ने लगे। कहा इस बेटी की परवरिश मैं करूंगा। उनमें से 3 सहाबी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद बिन हारसा, ये तीनों के तीनों जो है झगड़ने लगे, लड़ने लगे, कहने लगे कि मैं इस बच्ची की परवरिश करूंगा, मैं इस बच्ची की परवरिश करूंगा। मेरे भाइयों देखो सोच कैसी बदली। जो लोग जिंदा दफन कर रहे हैं, जो लोग जिंदा मार रहे हैं, जो लोग जिनके चेहरे पर स्याही छा जा रही है, वो लोग बेटी के लिए झगड़ने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, इसके सबसे ज्यादा नजदीक जो है हजरत जाफर बिन अबी तालिब है, क्योंकि इसकी बीवी जो है इस लड़की की माँ की इस लड़की की माँ दोनों बहन थी, यानी कि इसकी खाला है, ये इसकी परवरिश करेगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो कि लोग बेटियों के लिए लड़ने लगे और आज हम बेटियों से दूर भागते हैं। आज हमें बेटियों की बसारत दे दी जाए तो हमारे चेहरे स्याह हो जाते हैं। बेटों के लिए दूर दूर तक, और बेटियों के लिए हम ना जाने किस तरह की हमारी सोचें हो जाती है। बेटियों के लिए हमारे जहनों के अंदर ये तस्वुर पाया जाता है, उनके साथ ना इत्तिफाकियत की जाती है। बाज ऐसी चीजें भी मैंने देखी है कि बेटों के लिए बहुत ज्यादा कीमती कीमती चीजें इंसान दिला देता है, अगर बेटी का नंबर आ जाए तो वहीं पर इंसान अपने हाथ को खींच लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सामने किराम, कैस बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु जब उसने लड़कियों की ये बसारत सुनी, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। कहा अल्लाह के नबी, मैं वो बाप हूं जिसने अपने इन हाथों से अपनी 8 बेटियों को जिंदा दफन किया है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इकरार किया, कहा मैंने अपने इन्हीं हाथों से 8 बेटियों को इस जमीन के अंदर जिंदा दफन किया है। ए अल्लाह के नबी, इसका कफारा बता दीजिए। ए अल्लाह के नबी, जहन्नम से बचने का कोई तरीका बता दीजिए। ए अल्लाह के नबी, अल्लाह के अजाब के पकड़ से हमें कोई रास्ता बता दीजिए कि ये जालिमाना जुल्म मैंने अपनी बेटियों के साथ किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ तुम लोग 8 गुलाम आजाद कर दो। उसने कहा ए अल्लाह के नबी, 8 गुलाम आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि गुलाम उस वक्त बहुत कीमती थे, बहुत कीमती सरमाया थे, इसलिए वो उनकी ताकत नहीं रख सकते थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा जाओ 8 ऊंट जाकर ज़बा कर दो और उनको सदका कर दो, ये तुम्हारे लिए कफारा होगा। और तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिगफार करो। आज अगर ये मामला है, आज हम अपने पेटों के अंदर अपनी बेटियों को गिरा देते हैं, आज सबसे ज्यादा यही मामला है। मेरी माओ बहनों जरा गौर करो, ये सजा अल्लाह के नबी ने उस वक्त बताई जिस वक्त में वही नाजिल हो रही थी, और आज तो ये मामला है कि हर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में रोजाना कितनी लड़कियों को कत्ल होता है पेटों के अंदर, रोजाना कितनी मासूम बच्चियों को इस दुनिया में आने से रोक दिया जाता है। जरा गौर करो आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान के बेटियां हो वो बाप बड़ा खुशनसीब है। जिस इंसान के बेटियां हो वो बाप बड़ा खुशनसीब है। क्यों? क्योंकि फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल अंबियाउ अबनाउ बनातिन, के सबसे ज्यादा बेटियां जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटों से ज्यादा बेटियां अंबिया किराम को अता फरमाई। आप जरा गौर कीजिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आपके तीनों बेटे आपके
ज़ौजा मोहतरमा के गोद के अंदर ही वो लोग कज़ा कर गए, यानी कि उनका इंतकाल हो गया। और आपकी नस्ल आपकी बेटियों के जरिए चली, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से किस कदर मोहब्बत करते थे। बाज रिवायतों में मिलता है कि जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखकर मजलिस से खड़े हो जाया करते थे और उसका इस्तकबाल करते और उसके पेशानी का बोसा लेते और चूमने के बाद उसको अपने पास बिठाते। ये मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटियों से। और आज का अगर मामला देखा जाए, आज तो बहुत सारी बेटियां अपने वालिदैन से साल तक नहीं बोलती, उनके अपने माँ बाप से साल भर यूं ही गुजरता जाता है। अपनी कभी माँ से लड़ाई, कभी बाप से लड़ाई, कभी बहन भाइयों से लड़ाई, इस तरह का मामला है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से इस कदर मोहब्बत कर देते। मेरी माँ और बहनों, बेटियों को बोझ ना समझो। बेटियां तो घर की जीनत है, बेटियां तो घर की रौनक है, बेटियां तो वो मकाम दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मेरी माँ और बहनों, जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटियां अता फरमाई है, जब वो अपने जवानी के मकाम तक पहुंच जाए तो हमारा हक यह बनता है उनकी बेहतरीन तरीके से शादी करें। बेहतरीन शादी करने का मतलब यह है कि उनके लिए बेहतरीन शोहर ढूंढे। ऐसे माल और दौलत के चक्कर में ऐसे लोगों को ना ढूंढने लगे कि जो जुआ खेलने वाले हो, जो शराब पीने वाले हो, जो लोग रोज दिन भर के चीजों में मशगूल हो और अपनी बेटी की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दे। ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो थोड़े से माल के चक्कर में अपनी बेटी की जिंदगी को खपा देते हैं, अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मेरी माओ बहनों, कि बेटी वो मकाम है बेटी का। अगर आप अपनी आंखों में खुशियां देखने चाहते हैं, आप अपने आंखों में अगर खुशी देखना चाहते हैं, तो अपनी बेटी के लिए घर जो है अच्छा ढूंढो, उनके लिए अच्छी जगह, अच्छा शोहर तलाश करो ताकि आपकी आंखें ठंडी रहे। अगर शादी के बाद अगर माँ बाप का दिल खुश रहता है तो बेटी अगर खुश है तो माँ बाप का दिल भी खुश है, और अगर बेटी जो है ना खुश है तो माँ बाप के लिए बड़ा ही इम्तिहान और नाजुक मरेला होता है वो। इसलिए मेरी माँ और बहनों, बेटी जो है बड़ी अहम अजीम चीज है। वो बेटी वो अजीम सरमाया है जो हमारे लिए जहन्नम के आड़ बन जाए, जो हमें जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। इसलिए मेरी माँ और बहनों, बेटी को बोझ ना समझो। बेटी पैदा होने पर और सास और ससुर का जो मामला होता है उस वक्त में, उसको ऐसा ना किया जाए, उसको ना सताया जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है कि बेटी देना और बेटा देना और किसी के लिए दोनों चीजें देना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, बेटी के साथ हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा सलूक और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए बेटी की बड़ी अजमत है। मेरी माँ और बहनों, आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, या आलमीन तो हमें बेटियों की अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाओ। या आलमीन, जिन भाइयों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटियां अता फरमाई है, या आलमीन तो उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करने की तौफीक अता फरमाओ। या आलमीन, जिन लोगों के लिए दोनों बेटा और बेटी दोनों अता फरमाई है, या आलमीन तो उनकी भी बेहतरीन तरीके से परवरिश करने की तौफीक अता फरमाओ। या आलमीन, तो हमें जब तक जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो दीन इस्लाम पर हो। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।